From this class, we will start with From this class, we will start with the introduction part is over, and from this class, we will start with the HR activities. Okay, these HR activities are the final. These HR activities are the main functions of HR. अभी तक आप जितना कर रहे थे वो HR का introduction था. Now you will actually start with. Now you will start with various activities that an HR manager or the HR department of an organization has to do. The first activity is recruitment and selection. Right now. Lecture होगा. Next class I'll give you writing important things. हम लोग का एग्जाम है, हम लोग कैसे कवर करेंगे? हम 18 of November. It is there. हाँ. 18. हाँ. Let's see. Suresh, I'm sending you a page. You send it to rest and even me किसी का नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आइएगा. फॉर्मल ग्रुप के अलावा भी आपका एक ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें आप सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, हम सुरेश से you just have to, there is a, okay, if there is any BCom BBM student, I have sent a recruitment page. This is any random recruitment page picked up. BCom में डाउनलोड करने बोले, उन्होंने ये डाउनलोड किया है, तो इसलिए हम सोचे कि सारे क्लास में यही दे देते हैं. ये एक रैंडम रिक्रूटमेंट पेज है जो SBI PO का रिक्रूटमेंट पेज है. I will give you the insights of how recruitment page is done. कि कैसे रिक्रूटमेंट जब आती है तो उसमें क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. I sent it to Suyash. Suyash will send it to the rest of you. And आपको याद कुछ नहीं करना है, बस एक बार इस पेज को देख के आना है कि क्या-क्या चीजें हैं. आज की क्लास में जब हम लेक्चर देंगे तो उसके बाद काफी कुछ समझ में आ जाएगा. Now we start with recruitment. What is recruitment and why I take even I feel that PO's recruitment paper is better for you क्योंकि आप अभी इसी एग्जाम के बारे में ज्यादा सुने होंगे. IBPS PO के बारे में तो सुने हैं ना? सुने हैं? ठीक है, इसीलिए there are various exams and the processes differ for the other exams. Now, what do you mean by recruitment? Anyone? क्या होता है? एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलो, हम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुमको सब कुछ पता हो. हम एम्प्लॉय को हायर करना. एम्प्लॉय हायर करना. Selections of employees for the companies and banks. हाँ, मनी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुई. हम अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड उसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड पे उस पे हायर करते हैं. इन सिंपली ये कह सकते हैं. ठीक है, थोड़ा तो वो सही बताया. बाकी लोग बस वही होगा आंसर सबका कि लोगों को हायर करना. प्रोक्योरमेंट ऑफ मैन पावर इज नोन एज रिक्रूटमेंट. But why I have written two different headings in recruitment and selection? Because recruitment and selection are two different words. आप इसको भले ही एक साथ बोल देते हैं, but these two words are different. When you recruitment means we can say that recruitment is hire of employee and selection means putting the right employee to the right place in the organization. No. Not selection means selection means hiring the right candidate. Recruitment is not hiring. ये बताइए, जब आप अभी ये इसीलिए हम भेजे वो तो मेरे नजर से और फिर अपने वीडियो ग्रुप में डालते हैं. जब कोई रिक्रूटमेंट पेज आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो IBPS PO का एक कैलेंडर है और उसकी एग्जाम कैलेंडर है, उसके हिसाब से उसने रिक्रूटमेंट का पेज निकाला. रिक्रूटमेंट का पेज निकाला तो दे आर इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स. आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए और फॉर्म भरिए. जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं
those who are interested. There are people who are graduate, but they are not interested in bank jobs, right? They will not fill the bank jobs. So recruitment means that they will take out this advertisement and what is this, what does this advertisement mean? This advertisement means that those who are interested, you please fill up the form. आपको पीओ बनना है तभी तो आप फॉर्म भरेंगे ना, कैसे भर देंगे? नहीं, हो सकता है कि आपको बीकॉम के बाद पीओ बनना हो, क्या हो सकता है आपको बिल्कुल नहीं बनना हो, तो वो आया या गया उससे आपको कोई मतलब नहीं। फॉर्म भरने का क्या मतलब होता है कि आप पीओ बन गए? तो एवरीवन एग्रीज, रिक्रूटमेंट फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आप बन गए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आईबीपीएस पीओ? कैसे होता है, स्टार्ट से बताओ। रिक्रूटमेंट आया, देन पहले प्री होता है, अच्छा तुम बोल रहे हो आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, नहीं ठीक है, ये डाउट हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम लोगों को पता हो, ये बहुत ही हमारी फंडामेंटल चीज है एचआर की, और ये नॉर्मली पता नहीं होती है, इसलिए हम क्लास में डाउट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है। उसके बाद भी आपका सब कुछ हो गया, तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, फिजिकल एग्जामिनेशन में बाहर हो गए, होता है ना एग्जाम जैसा, फिजिकल एग्जामिनेशन में बाहर हो गए, ये भी एक क्राइटेरिया है। आईबीपीएस का फॉर्म भरते वक्त दे डू नॉट आस्क यू टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स, दे डोंट आस्क, तो तुम अपलोड करते समय जब तुम्हारे मैट्रिक का मार्क्स पूछा जाएगा तो तुम 90% लिख सकते हो, तुम ग्रेजुएट नहीं हो फिर भी ग्रेजुएशन लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, कि हम ग्रेजुएट नहीं, अभी जैसे तुम एलिजिबल नहीं हो एग्जाम देने के लिए क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड सेमेस्टर इज फर्स्ट ईयर, यू आर नॉट एलिजिबल, और तुम भर दो कि मेरा ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स है, तो प्री भी निकाल लो, बहुत तेज हो तो मेंस भी निकाल लो, तुम इंटरव्यू भी निकालो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो हटा देगा, क्या फॉल्स भरेंगे, ये होगा ना। तो अब बताओ रिक्रूटमेंट क्या हुआ और सिलेक्शन क्या हुआ? रिक्रूटमेंट मींस simply means inviting as many number of applicants as possible through various sources. अब देखो अपने थिंकिंग को नैरो मत करो, प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट यूपीएससी सबका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर अलग अलग होता है ना, और अगर बहुत बड़ी कंपनी में जाओगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में तो वहां पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, ठीक है, क्योंकि हम आपको बोले कि वहाँ रिक्रूटमेंट के लिए दे हैव देयर ओन एल्गोरिथम ऑफ, they have their own tools of selecting you, they are hardly concerned about which college you passed out from and how many marks, जैसे कि नहीं होता 70% है तो अच्छा स्टूडेंट होगा, कम में तो अच्छा नहीं होगा, they are not bothered about all these things, that is why उनका एक एम्प्लॉय उनका ब्रांड होता है, they do not judge you by marks, in fact they do not even judge you by the number of years of experience you have in some other company, they judge you completely by your own capabilities, your own aptitude, your cognitive skills, your problem solving skills, your judgment parameters and everything. Plus हर जॉब के लिए हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, हर जॉब के लिए इक्वल स्किल्स नहीं चाहिए होती है। आप कभी भी देखें कि यूपीएससी में कोई आईएएस बनने जा रहा है और उसको टाइपिंग का एग्जाम देना पड़ रहा है, टाइपिंग का एग्जाम होता है मालूम है, उसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टेस्ट बहुत टाइप का होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और भी बहुत तरह का टेस्ट होता है। तो टेल मी, टाइपिंग सब चीज होने के बाद आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, एसएससी का टाइप ग्रुप सी का एग्जाम होता है,
उसमें टैक्स असिस्टेंट वगैरह का जो पोस्ट होता है, हाँ इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट, दे आर सपोज टू गिव अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी टाइपिंग का टेस्ट उसमें होता है जब उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर आगे बढ़ता है रिटन क्लियर करने के बाद, क्योंकि उस जॉब की वो रिक्वायरमेंट है, वो एक टाइप ऑफ क्लरिकल वर्क है, क्लरिकल जॉब है। ग्रुप ए सर्विस में जो लोग हायर होते हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है, ग्रुप बी में जो हायर होते हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है। अभी देखा है ना कि बहुत वहाँ पे तो हटा ही दिया है, ग्रुप बी में कई जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन का जो मार्क्स है उसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। लेकिन जब आप ग्रुप ए सर्विस लेते हैं जैसे यूपीएससी, जैसे स्टैटिस्टिकल, इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, पेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, आईसीएआर वगैरह के जो साइंटिस्ट होते हैं, इन सब में इंटरव्यू होता है ना? क्यों होता है? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। बिकॉज इस पे डिस्प्यूट हम बताएंगे, जैसे जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का क्लास आगे आगे पढ़ेगा हम बताएंगे, ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज, एक और एग्जांपल देते हैं, देखो डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन करने के लिए आते हैं लोग, आते हैं ना? मान लो कि वो एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आए, मान लो, और तुम लोग को हायर करके ले जाना चाहते हैं। उनका क्राइटेरिया ये है कि एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल, he will be eligible if they come in 23 or if they allow the final year students to appear beforehand। कई जगह पे होता है वो ले लेते हैं, फिर फाइनल सेमेस्टर आप क्लास में नहीं कर पाते, वो आपको कॉलेज से लिखवा के देना होता है कि हम क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो फिर आपको सिर्फ एग्जाम देना होगा, तब आपके दोस्त संगी साथी काम आते हैं, नोट्स बनाते हैं आपके लिए और आप रट आके नोट्स पास करते हैं। नौकरी आपकी लग चुकी होती है। फाइनल सेमेस्टर बहुत हो जाता है, दिसंबर टू जनवरी इज द mid November to the start of February is the peak season for recruitment, hiring हर जगह। ओके, सो ये कैंपस इंटरव्यू पे आए, मान लीजिए एक सोर्स क्या है उनका, आप लोग हैं, आप लोगों को रिक्रूट करने के लिए ले जा रहा है, आपसे सीवी मांगा गया। दूसरा सोर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग होंगे जिनको इंटरनली प्रमोट करके वो बनाया जा सकता है, जिसके लिए वो बाहर तलाश कर रहे हैं, है कि नहीं है? होता है कि नहीं ऐसा? इंटरनल प्रमोशन भी तो होता है, टैक्स असिस्टेंट बन जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर, इंटरनल प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके, है कि नहीं? तीसरा क्या है ऑप्शन रिक्रूटमेंट का? वेरी गुड, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट देंगे, वो दे सकते हैं। मान लीजिए उनको कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल चाहिए जो उनको पता है कि बच्चों में नहीं मिलेगा, अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, बाहर से एडवर्टाइज करेंगे, या उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा होगा जो इतना केपेबल होगा जिसको इंटरनली प्रमोट किया जा सकता है, या फिर उसके दिल्ली ऑफिस में कोई एक ऐसा आदमी होगा जो ये स्किल संभाल सकता है, उसको ट्रांसफर करके बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है कि नहीं? yes. उसके बाद ये इसका नाम सुने हो कि नहीं कि कोई काम कर रहा होगा ऑफिस में, and then somebody subordinate or your senior, and you just discuss that this kind of skill is being required by the organization right now and we are in hiring process। वो अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड का सीवी दिए होंगे, क्या हायर कर सकते हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, ये दूसरे कंपनी में है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन दिस कंपनी, एंड देन रेफरल, एम्प्लॉय रेफरल कहते हैं उसको, कर सकते हैं कि नहीं? yes. ये सारा प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट है। अब समझ में आ रहा है? रिक्रूटमेंट इज inviting applicants, as many applicants as possible from various sources। कैंपस इंटरव्यू, तुम लोगों से सीवी मांग दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया बाहर से, इंटरनल प्रमोशन से जा सकते हैं, ट्रांसफर से एम्प्लॉय ले सकता है वो, और एक क्या एग्जांपल हमने डिस्कस किया हम लोग, एम्प्लॉय रेफरल, they can hire somebody from employee referral also,
नाउ यू आर गेटिंग दिस कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। लेकिन इन सारे प्रोसेस से हायर करने के बाद, सारे प्रोसेस से हायर नहीं, जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो ऑल दोज हु हैव अप्लाइड, डज दिस मीन दे आर सिलेक्टेड? अब समझ में आ रहा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस? समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, अब तुमको पीओ में हायर कर रहा है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट को निकाला, लेकिन उसके पास बहुत सारे क्लर्क भी तो होंगे जो 3 साल काम कर चुके हैं और उनको पीओ प्रमोट करना है इस बार, तो वो बाहर का एडवर्टाइजमेंट उसी हिसाब से निकालेगा ना, पहले देख करके कि इंटरनली हमको कितना प्रमोट करके पीओ मिल जाएगा as per their vacancies, just as per their vacancies। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अब बताओ, तुम्हारा यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन करने के लिए बिग बास्केट आई 2023 बैच के लिए आई, and they said that graduates are allowed, we are hiring graduates, PBM will sit there, BCom will sit there, BBA will sit there, not PCA because this is a management company. Say for example all these three, they will ask CV from all of you, सब मिला के मान लो कि इंटरेस्टेड लोग, अब उसमें भी इंटरेस्टेड लोग, जरूरी नहीं है कि सबको बिग बास्केट में जाना हो, पीपल माइट हैव हैड अदर प्लान्स, किसी को अपने फैमिली का बिजनेस देखना हो सकता है, वो ग्रेजुएशन की डिग्री बस ले रहे हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे, they do business management because they want to run their own business, right? And there are communities that look down upon service, कि क्या ही कमा लेते हैं सर्विस में लोग, होता है ना? And there are people who might want to prepare for BPSC after this exam, they might have bigger dreams, उनको मोटिवेशन है बड़े ड्रीम्स के लिए, ये हो सकता है ना? और कुछ लोगों को बिग बास्केट में नौकरी करनी होगी। हम क्यों बता रहे हैं ये, हम आगे बताएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, आप देखिएगा कि जेडी में भी जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा उसका, तो उसमें लिखा रहेगा ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विल सबमिट देयर सीवी, डज दिस मीन सिलेक्शन? दिस इज रिक्रूटमेंट। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस है बस उसकी बात कीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ना, होता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जो आप लोग पढ़ते नहीं है, आप फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन टफ था, बनाइए एकदम। उसका होगा एक टेक पेपर, एक नॉन टेक पेपर, ले लिया। हैज ही बीन सिलेक्टेड? नेक्स्ट राउंड आएगा जीडी, जीडी आएगा। कुछ बच्चे जो एप्टीट्यूड में जिनको सूटेबल नहीं फाइंड किया गया, दे आर नॉट सूटेबल, जब एग्जाम लिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, तो देयर इज ऑलवेज एन आर्ग्यूमेंट कि क्या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज द सोल क्राइटेरिया ऑफ जजिंग अ कैंडिडेट फॉर जॉब। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का सबसे बड़ा जो एक बैकअप दिया जाता है वो इस बात से दिया जाता है कि वी प्रिज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका जब परफॉर्मेंस देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में, वो एक नॉर्मल शेप का ग्राफ बनता है, समझ में आएगा? और इसमें कुछ कंप्लीटली ये माना जाता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बहुत पोरली परफॉर्म करते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो इस तरीके से सेट किया जाता है कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन हाउ यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट एंड द काइंड ऑफ स्किल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड ऑन द जॉब। रीजनिंग क्यों बनाने दिया जाता है? बनाए कभी रीजनिंग? एनहांस ओके, एंड रीजनिंग बनाए, पजल बनाएंगे। पजल बनाते समय लगता है ना कि कितना सोचना पड़ता है,
कौन सा पार्ट किस में फिट करेगा, विच मैन इज वेयरिंग विच कलर कार प्लेसेस, ऐसे करके दिया जाए। वो एक क्वेश्चन आपके अंदर की बहुत सारी चीजें जज करता है, मेंटल एबिलिटी आपकी जज करता है कि आप सोच सकते हैं कि नहीं। मैथमेटिक्स के बारे में एक बात कही जाती है, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स सॉल्व मैथ्स। किसी बहुत फेमस आदमी ने ये बात बोली, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, बट ही हैज सेड इफ यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और आपको अगर कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है ना, अगर आप कंसंट्रेट नहीं, तो बहुत लोग होते हैं ना 3 घंटा बुक लेके बैठेंगे, पढ़ेंगे उसमें से आधा ही घंटा और झूलते रहेंगे किताब लेके, होते हैं ऐसे लोग, दैट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैथ्स के बारे में ये बात कही जाती है, इफ यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सॉल्व मैथ्स। मैथ्स इज द परफेक्ट थिंग दैट कैन जज योर कंसंट्रेशन एबिलिटी। इन नंबर्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So, and for certain exams, you have to have current affairs. यानी आप अवेयर हैं कि नहीं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए। तो जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बनाया जाता है उसमें एक एवरेज कंसिडरेशन ये होती है, देयर विल बी सम कैंडिडेट्स हु विल परफॉर्म वेरी पुअर, जो अनसूटेबल हैं। अब 50 में से 2 क्वेश्चन मैथ्स का बना रहा है, 50 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं बनता है उससे। 40 मिनट क्यों दिया जाता है, एंड देयर इज अ टाइम फ्रेम। तो आपका दिमाग सिर्फ दौड़ना नहीं चाहिए, उस टाइम के फ्रेम में दौड़ना चाहिए। देयर इज सम रिलेशन बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड एट योर जॉब। रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत मजेदार होते हैं, डेटा सफिशिएंसी और ये सब टाइप का क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज, ये चीजें बहुत बेसिक होती हैं। आपको क्लास में बनाने दिया जाएगा तो शायद आप 1 घंटे में बना देंगे, लेकिन वहां बनाना है 5 मिनट में, वो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आपको वर्क प्लेस पे भी काम करने के लिए पूरा साल ही दिया जाएगा। दैट इज व्हाई योर स्किल्स आर जज्ड। एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स का ये फंडामेंटल है कि there is some relationship between the skill which is there in the employment test and what is required of you. Then the other consideration is that some candidates will perform very poorly, very unsuitable, and some will will behave exceptionally good, right? So employment test se hum filter kar sakte hain, but there is also an argument between how much should we rely on these employment tests and interview. There are certain interviews, there are certain exams where the ratio of employment test to interview is 80:20. For some it is 90:10. For some it is 85:50. Understood? Yes, ma'am. तो GD हुआ campus recruitment में, a portion will be filtered for GD. Are they selected? No. Then from GD, a handful of students will be selected for interview. Are they selected? सिलेक्शन हो गया है? नहीं। इंटरव्यू राउंड हुआ, इंटरव्यू राउंड के बाद फाइनली लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वी हैव पिक पॉइंट दीज स्टूडेंट्स। आर दे सिलेक्टेड? नो, दे आर नॉट सिलेक्टेड। Selection is supposed to be done, selection is deemed to be done when you get an employment letter, contract of employment. समझ में आया? In proper HR terms, selection is deemed to be done when you have a contract of employment. Big basket का एग्जाम्पल हम छोटा सा दिए यहाँ समझाने के लिए। अब एक दूसरा गवर्नमेंट का एग्जाम्स था, से फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ट्रेनी जो MBAs को लेते हैं। Obviously an exam that is there for judging the skills of an MBA for a specialized work is tougher than the exam that will judge a graduate level student. They, after the interview thing, they take out a list, okay, of the number of students or number of employees who are selected, but their candidature is subjected to be cancelled if they are supposed to be, if they are found to be guilty of providing any
false information and subject to your passing in physical examination. क्यों किया जाता है? देखिए इसका बहुत डीपर implications है. For example, management trainee of any PSU like Neyveli Lignite Corporation. Imagine it's a coal mining company of based in Tamil Nadu. उसका रिक्रूटमेंट आया, एडवर्टाइजमेंट आया, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड, जिनको वो नौकरी चाहिए, दे हैव अप्लाइड एंड दे विल सिट फॉर द एग्जाम्स. डेट आया उसका, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए आप एंड यू विल सिट फॉर द एग्जाम्स. After sitting for the exams, they will take some time to process the number of students who have been screened through that written exam. Those numbers generally they will call the Neyveli Lignite Corporation. It calls students in the ratio 6:1. Means for every one post, they will call 6 people for interview. Coal India calls it in the ratio 3:1. वो organization ज्यादा क्यों रखती है? ताकि वो रिजर्व में और ज्यादा कैंडिडेट्स को रख सके, क्योंकि वो माइनिंग कंपनी है. लोग जानते हैं कि ऑड लोकेशंस है माइंस में, वो भी चेन्नई तमिलनाडु के माइंस में. नॉर्थ इंडियन विल रन अवे फ्रॉम देयर. दे कीप रिजर्व रेशियो मोर. अंडरस्टूड? कि अगर ये छोड़ा, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. अंडरस्टूड? पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. Once they get better opportunities, they leave the previous one. This is the rule. इसीलिए organizations bond भरवाती है. ठीक है? So after this interview process, they call you. During the interview process, they call you for simultaneously document verification. And all those exams which were being conducted during this time, they have called for with a COVID RT-PCR negative test. Understood? RT-PCR negative test. Interview के time पे they call you with your documents, and they are so strict in document verification. What they have written in the advertisement is what they need. Even if you have passed the exam and you don't have a provisional degree, although this is not your fault, आपकी यूनिवर्सिटी देगी तभी तो आप लेके जाएंगे. पर अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है और आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है, they will not take you. They will not take you. They will not send you for interview. Okay? So, document verification. Are they selected during document verification? No. आपने इंटरव्यू दे दिया. You're not selected. Final list आया इंटरव्यू का. You're still not selected. Still that selection process is not deemed to be over. Then you will be called for medical examination and allotment of your workplace. समझ में आई बात? और फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं. क्यों बाहर हो जाते हैं और उनको बाहर करने का क्या रीजन होता है? देखिए, if you remember, I'll ask you one question. I'll see if you can recall or not and if you can connect or not. Recall में मुझे ये आंसर मिला. I expect that from you too. आप physical examination में your eyesight is not good. Obviously there are certain physical limits for some exams. जैसे पायलट की eyesight 6/6 होनी चाहिए. एयरफोर्स, आर्मी, ये सब चीज में तो आपको परफेक्टली नॉर्मल आदमी को भी वो लोग बाहर कर देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या लेंथ ऑफ योर लेग्स इज शॉर्ट, काइंड ऑफ दोस थिंग्स. योर हियरिंग कैपेसिटी, वो कहाँ से आपके घर में जो बहुत अच्छा सुनते होंगे ना, बहुत तेज सुनते हो, उनको भी वो बाहर कर देंगे. That your hearing capacity is not good. So they have some very rigorous kind of tests for physical. And you cannot lie about your age. Why? Because there are certain developments in our body that happen at certain age only, and they can make out capsule code. Understood? So, but for those organizations where the medical thing is not that important,
जैसे आपने देखा है अभी ये पीओ वाला जो रिक्रूटमेंट पेज भेजा है उसमें डिसेबिलिटी का भी कोई प्रोविजन होगा। जैसे आईबीपीएस वगैरह में इफ यू हैव 40% एंड अबव डिसेबिलिटी यू कैन अप्लाई फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा, तो उनको शायद बैंक के लिए 40% से ऊपर भी वो ले सकते हैं। बट देन देयर आर जॉब्स वेयर स्लाइटली डिसेबल तो तुम छोड़ो, परफेक्टली नॉर्मल आदमी में भी एरर निकल सकता है, राइट? So why is physical examination important? One, you could be physically unfit, not fit for job, but there are things like जैसे रिक्रूटमेंट आपका ऑफिस वर्क है या वो है तो आपका चश्मा है या कुछ है तो उसके लिए दे डू नॉट हैव इशू, क्योंकि उनको वैसा वर्क प्रॉब्लम नहीं है उससे। आपकी आईसाइट दिख सकती है, आपकी हाइट दिख सकती है। देयर आर सर्टेन जॉब्स वेयर हाइट इज अ क्राइटेरिया, जैसे यूपीएससी में बाकी डोमेन्स के लिए नहीं लेकिन आईपीएस के लिए तो चाहिए हाइट, है ना? देयर इज अ सर्टेन लिमिट अप टू व्हिच हाइट ऑफ अ वुमन एंड अ मैन इज अलाउड। तो हाइट दिखती है, आप बहुत ज्यादा ओबेस हैं, बहुत मोटे हैं आप, इन फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें चेस्ट साइज वगैरह दिया रहता है, ऑल दोस थिंग्स इफ यू मीट दैट्स फाइन, जो चीजें दिखती हैं दैट इज फाइन। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स that is that you can conceal? आपको कोविड है किसी को पता चलेगा जब तक टेस्ट नहीं होगा? मे बी यू आर asymptomatic, maybe you claim that just as a flu. Understood? आपको कोविड है वो पता नहीं चलेगा, इसीलिए एग्जामिनेशन के टाइम पे आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट मांगा जा रहा है। मे बी somebody can have टीबी, टीबी पता चलेगा ऊपर से देखने से? Maybe somebody can have AIDS and the person will die very soon at workplace. शक्ल से देखोगे तो एड्स पता चलेगा? तो ऐसे लोगों को लेने से क्या प्रॉब्लम, ये बताओ मुझे। So मैम जब भी कोई कंपनी रिक्रूटमेंट निकालती है उस कंपनी का भी बहुत सारा रिसोर्स वेस्ट होता है, and that is one point. हाँ कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हमने कोई रिक्रूटमेंट और उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया तो वो एम्प्लॉय जल्दी से क्विट कर जाए, छोड़ दे। And ये ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, wastage of resources, yes, very good. What else? लेबर टर्नओवर तो इसको नहीं बोलोगे, मर ही जाएगा तो फिर टर्नओवर क्या? बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। Tell me something from health point of view. I'm asking you about physical examination. बताइए, अगर किसी एम्प्लॉय को टीबी है और उसको स्क्रीन नहीं किया गया, क्या होगा? समझ में आई? और एक फैक्टर बताओ, आप कोई कम्युनिकेबल डिजीज लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे तो बाकी लोगों को भी तो वो फैल जाएगा, उसके डर के कारण बाकी लोग छोड़ भी जा सकते हैं। और मान लो वो नहीं बताता है, कोई बताएगा थोड़ी, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर फिजिकल टेस्ट नहीं किया गया है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा शायद, बाकी लोग के लाइफ को खतरा है ना। टीबी इज अ हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली, so there is always a threat of communicable, some kind of communicable disease coming into the organization. Second thing, आप लोग ये सोच नहीं पा रहे, झूठ बोल करके वो अंदर आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, अनवारंटेड क्लेम्स करेगा ना कि एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन दीजिए हमको, हम बीमार हो गए यहाँ आके। अब समझ में आया? There could be unwarranted claims. और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन का क्या रूल है? यू शुड हैव वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मानी एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की वजह से जो हैजार्ड होता है, जैसे एस्बेस्टस फैक्ट्री में एस्बेस्टियोसिस, माइका में कुछ और, सिगरेट फैक्ट्री में लंग कैंसर वगैरह का डर होता है। हमारा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है? बोलते बोलते गला चौक हो सकता है, राइट? इस तरीके, दिस इज नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। सो
for claiming the compensation under occupational hazard, you should have worked in the organization for at least 6 months. And you falsely entered into the organization, you're carrying your falsehood, and then you claim that I am ill after I entered this organization, you will charge a heavy compensation. और even जो डेथ का जो compensation देना पड़ेगा ना उसके nominees को, समझ रहे हो कि नहीं? ये तो ऑर्गेनाइजेशन को unnecessary cost हो जाएगा. First, the fear of communicable disease, any communicable disease entering into the organization. Second, the fear of any kind of unwarranted claims that might enter, the falsehood can propagate from there. Understood? These are the relevance of physical examination. Apart from the rigorous physical examination need that some jobs take, like Air Force, Army, Air Force, pilot, Navy, Bihar Military Police, है ना? तो उसके अलावा भी ये एंगल्स होता है फिजिकल एग्जामिनेशन करने का. Understood? In the next class, we will do more detailed discussion about recruitment and selection. Understood? So, एक बार वो PO वाला